Welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. Dear students, today we will be discussing today's paper which has been held with 11th Art Girls. I will be discussing the whole paper with you. The paper which has been done by you, I have gone through the paper, but I have chosen one among those paper. It has been written very beautiful by one of the student. I won't be disclosing the name, but I will be presenting the same with you all. So starting up with the English paper, as you all know, the English paper is there for 3 hours. It is minimum of 80 marks. I have told you a strategy, and I'm very much sure along with me, Nidhi ma'am is also emphasizing on the thing that you have to adapt a strategy, that is you have to start your paper with section C. After the completion of section C, you have to go with section B. After the full completion of section B, you will be starting up with section A. But one of the student has started up with section A. इसमें कोई harm नहीं है, but it is a time-consuming strategy if you're starting your paper from section A. But no worries, I will be discussing the same with you right from the section A. बच्चे सेक्शन ए में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच यू विल बी गेटिंग इज दैट इज नोट मेकिंग। सेक्शन ए की अगर टोटल मार्क्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ 20 मार्क्स। 10 मार्क्स इज देयर फॉर योर नोट मेकिंग क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स इज देयर विद द अनसीन पैसेजेस। फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस द राइटिंग पैटर्न, हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द पैटर्न इन फ्रंट ऑफ एवरीवन in your sheet so that you will be able to fetch good marks from your evaluator. But the very first question, it is done beautifully by the student. The screen is visible to you all, and I hope the format is also very much visible to you. I'm marking it with my pen so you can visualize the same very nicely. But the very first thing which you need to do when you will be going with the note making is that title. You have to go with the title. After writing the title, leave a line and start writing notes, but you have to mention the first that you are making the notes. This girl has made note nicely, but two things I really want to emphasize on, I want to bring it in your notice. When we talk about heading, try to use abbreviation. It is mentioned by me in this page also. Try to use abbreviation in the title and try to use abbreviation in the subheadings too. You have to number the first subheading as 1, the first subpoint as 1.1, followed by 1.2, 1.3, 1.4. बच्चे आप एब्रीवेशन वही यूज़ करेंगे जो आप टेबल में बनाएंगे। टेबल में आपको बताऊंगा। अगर आपने एब्रीवेशन यूज़ किए, सी हमें एक हैबिट है, वी यूज़ सिंबल्स। फॉर एग्जांपल हमने एंड यूज़ किया, एंड का सिंबल यूज़ किया, बट वी हैव नॉट मेंशन दिस सिंबल इन द टेबल इन द एब्रीवेशन बॉक्स, देन इट विल बी मार्क्ड एज रॉन्ग। बच्चे one common mistake which I really want to bring in front of you all, most of you what you are doing is you are not making notes, rather you are making sentences, but the question itself says that we have to make notes. Notes should be short as prepared by this candidate. It shouldn't be more than 4 to 5 words. When you are drafting notes for the given passage, you need to keep one thing in your mind. You don't have to include conjunctions, prepositions, articles, connectors in note making. If there is a chance that you think that you are making a point and the sense is not coming out, it is not being framed with the proper sense, in that particular area, what you can do, bache, you can use connectors, prepositions, articles, but we need to use it at a minimum level. The rule for the note making is minimum subheading required is 4. When you will be starting up with the second subheading, you have to mark it as 2, then followed by 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. आप मिनिमम जब 4 सब हेडिंग्स लिखेंगे और उसके 4 सब पॉइंट लिखेंगे,
you have to make a proper abbreviation box as made by this candidate nicely. You have to segregate the box into two parts. One is abbreviation, there only the abbreviation has to be written, and words for which you are making the abbreviation. बच्चे, after making this box, start with a new sheet. You have to give title for the summary as it is given by this candidate. After writing the title, leave a line, write summary, and write the summary for the given passage. The summary has to be written in present tense, right? I have mentioned the tense in which you need to write the summary. It has to be present purely in nature. It should be of 80 words. Got it? Okay. Bache, if I talk about second question, let me move your question paper and we are coming to the second question. The second question is the unseen passage. इस क्वेश्चन में बच्चे what you need to do, you need to go through the passage nicely. आपको अच्छे से इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है, and after understanding the passage you need to answer the asked question. अब क्वेश्चन आंसर कैसे करने बच्चे? There is a pattern which has been suggested by, the guideline of the pattern has been given by JK Board. In this particular pattern, it is mandatory to write the question as written by the girl or candidate, right? और उसके बाद you need to answer the question. If you have a look over here, यहाँ पे मेरा कर्सर है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दी हैं. There is not a necessary to write the options over there. आप सिर्फ ये हेडिंग, जिस तरह से ये हेडिंग बच्चे ने लिखी है, आप हेडिंग लिख सकते हैं. हेडिंग के बाद यू नीड टू आंसर, राइट? सेकंड क्वेश्चन उसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन उसका आंसर, और आंसर अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग योर मार्क्स. बच्चे, सबसे इजी स्कोर करना सेक्शन ए में है. 20 में से 20 नंबर यू कैन इजिली गेट इट, यू कैन इजिली फेच इट, अगर आपका आंसरिंग का तरीका जो है, द वे यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन इज परफेक्ट. इसके बाद आई एम कमिंग टू द सेक्शन बी. इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन बी, देयर वाज ए फर्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शन बी जो कि कहता है योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप. आपका स्कूल जो है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है. किस लिए कर रहा है? टू जनरेट अवेयरनेस एंड हेल्प द नीडी पीपल. आपको एक पोस्टर ड्राफ्ट करना है गिविंग ऑल दी नेसेसरी डिटेल्स. तो बच्चे इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे? पोस्टर का सबसे प्लस पॉइंट ये है, द पॉजिटिव साइड ऑफ पोस्टर इज दैट इट डजंट हैव ए सेट फॉर्मेट, राइट? आप पोस्टर बॉक्स में बनाएंगे. जब भी बॉक्स बनाएंगे इन योर इंग्लिश पेपर, you will make box with the help of pen and a scale. बच्चे, if we talk about pencil, तो you are not allowed to use pencil. Use of pencil is prohibited. पोस्टर बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें. वेरी नाइसली मेड बाय दिस गर्ल. अगर हम स्कूल में एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो कब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ठीक है? उसका डे क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, कहां पे होगा. गिव ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कैंप और एनी ऑफ द इवेंट विच इज हैपनिंग इन द स्कूल प्रीमिसेस एंड यू नीड टू ड्राफ्ट ए पोस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बच्चे, आप जब भी पोस्टर बनाएं, पोस्टर की लैंग्वेज बहुत सिंपल रखें. इसमें एब्रिविएशन यूज ना करें. इसे क्रिएटिव बनाएं, इसे बुलेट्स में बनाएं. इसमें पिक्चर्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पिक्चर्स बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे. आप पिक्चर्स जो हैं यू विल बी मेकिंग विद द हेल्प ऑफ ए पेन, जैसे इस बच्चे ने बनाया है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और है. आई वॉन्ट टू डिस्कस और पार्ट विद यू ऑल, क्योंकि इस कैंडिडेट ने और में पोस्टर चूज किया एंड शी हैज़ डन इट रियली वेरी वेल. द और पार्ट सेज यू वॉन्ट टू लेट आउट ए फ्लैट. Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in to-let column of a newspaper. यानी हमने अपना एक फ्लैट जो है उसे लेट आउट करना है. लेट आउट का क्या मतलब हो गया बच्चे? रेंट आउट करना है. जब भी हम किसी चीज़ को रेंट पे चढ़ाते हैं या रेंट पे अवेलेबल करवाते हैं अपना प्रोडक्ट,
तो हम उसका जो टाइटल लिखते हैं वो टू लेट लिखते हैं, ठीक है। आप अगेन एडवर्टीजमेंट के लिए यू विल मेक ए बॉक्स, आप इसका हेडिंग टू लेट डालेंगे एंड यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन द फीचर्स, राइट। बेसिक नेसेसिटी, 24-hour water supply, power supply in the main heart of city, grocery store is reachable. उसके बाद you will be also writing the rent expected. अगर आप अपना फ्लैट जो है वो रेंट आउट कर रहे हो, उसे लेट आउट कर रहे हो, तो आप कितना रेंट जो है वो एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है बच्चे। यहाँ पे नीचे यू हैव टू गिव द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो वो कहाँ पे कॉल करेगा, योर फोन नंबर शुड बी देयर, योर ईमेल शुड बी देयर। आप इसमें ब्रोकर्स, प्लीज एक्सक्यूज ब्रोकर्स, या ब्रोकर्स कैन बी एक्सक्यूज्ड, आप इस तरह की लाइन जो है वो लिख सकते हैं ताकि आपका और आपके जो टेनेंट है जो आपका फ्लैट लेना चाहते हैं उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। बच्चे कमिंग टू दी सेकेंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज देयर इन द क्वेश्चन फोर्थ वुड बी देयर ऑन लेटर। लेटर में भी ऑप्शन होगा, तो दिस गर्ल हैज चूज टू राइट ऑन द सेकेंड ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन सेज यू आर समीर समीरा फ्रॉम डोडा। आप समीर हो या सिमरन हो, सॉरी, डोडा के। आप एक लेटर लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, एडिटर, ठीक है। वो एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का, इट इज गिवन इन द न्यूज इन द क्वेश्चन कि ये द स्टेट टाइम्स है जम्मू। और आप इस लेटर में बता रहे हो कि स्ट्रीट बेगिंग इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, ईवल ऑफ स्ट्रीट बेगिंग। स्ट्रीट बेगिंग क्या होती है बच्चे? स्ट्रीट बेगिंग वर्ड को समझिए कि जो बेगर्स गलियों में या हमारे घर में मांगने के लिए आते हैं, ये एक ईवल है, राइट। तो फॉर्मेट वेरी ब्यूटीफुल डन बाय दिस गर्ल। आप जब लेटर स्टार्ट करते हैं तो आप सेंडर्स एड्रेस से शुरू करते हैं, राइट। बट सेंडर एड्रेस में आपको पिन कोड लिखना मैंडेटरी है। यू हैव टू लीव अ लाइन, ठीक है, एज आई एम शोइंग इन द स्क्रीन, यू कैन सी द आंसर शीट। यू हैव टू राइट द डेट इन दिस प्रॉपर फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट विच इज एप्लीकेबल। इसके बाद यू नीड टू लीव अ लाइन अगेन। आप किसको लिख रहे हैं? तो क्वेश्चन इज सेइंग द लेटर इज रिटन इज टू बी रिटन टू द एडिटर। तो आपने एडिटर लिखा। एडिटर कहाँ का है? क्वेश्चन में लिखा है स्टेट टाइम्स का है, तो जम्मू में है, ठीक है। जम्मू के बाद आप इसमें पिन कोड डालिए, सब्जेक्ट लिखिए, और सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, रिस्पेक्टेड सर, और आप अपनी लेटर शुरू करेंगे। द लेटर इज ब्यूटीफुली रिटन बाय दिस गर्ल। आई वांट टू रीड आउट दिस लेटर वंस। With the help of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of kind authorities towards the evil of street begging in our district. आप जब भी लेटर स्टार्ट करेंगे बच्चे, जो आप एडिटर को लिख रहे होंगे, इसकी लाइन कॉमन है, तो लाइन को आप नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर या थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन द इशू which is very common nowadays। इस तरह से आप लिख सकते हैं, the issue is evil of street begging in the district या in our district। तो आप इसमें इसके डीमेरिट शेयर करेंगे कि क्यों बेगिंग जो है ये एक evil है। evil इसलिए because people they don't want to work, moreover they have been gifted with their body by Almighty, so they must be relevant enough, sufficient, efficient enough to utilize themselves in some of the work, है ना। But what these people are doing, they are coming home to home asking for money। और आजकल ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, if you're not giving them money और if you're offering them less money, तो ये गेट से they don't leave home। तो आप इन पॉइंट्स को भी लेटर में ऐड कर सकते हैं। बच्चे जो सेकेंड ऑप्शन आया था, द सेकेंड ऑप्शन लेटर का सेज यू आर आशीष अंकिता फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रियासी। आप आशीष है या अंकिता है रियासी के। आपको एक लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन। किसको लिखना है? डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन को, जम्मू, सजेस्टिंग सम इम्प्रूवमेंट इन टीवी प्रोग्राम। कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टीवी के प्रोग्राम्स में। तो इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चे? अगेन द फॉर्मेट इज सेम। यहाँ पे सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद लाइन छोड़नी है, डेट आ जाएगा, डेट के बाद यू विल बी लीविंग ए लाइन, लाइन छोड़ने के बाद यू विल बी मूविंग टू रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली।
हम किसको लिख रहे हैं? डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन, ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू में है। पिन कोड दोनों एड्रेस में आएगा, सेंटर्स में भी आएगा, रिसीवर्स में भी आएगा। और सब्जेक्ट क्या है? सजेस्टिंग सम इंप्रूवमेंट इन टीवी प्रोग्राम। क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट निकल गया, राइट। नाउ वी आर राइटिंग टू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, सॉरी डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन। तो डायरेक्टर जो है इट्स अ डेजिग्नेशन, तो हम इसको रिस्पेक्टेड सर के साथ ही स्टार्ट करेंगे। और वी विल सजेस्ट कि जो आज के टीवी प्रोग्राम्स हैं दे आर नॉट एप्रोप्रिएट एंड इट कांट बी वॉच इन फ्रंट ऑफ फैमिली और विद द फैमिली, राइट। So some unacceptable scenes are there, या some unacceptable content are being shown which is not being watched with the family, and this is a issue, and I suggest you to change the concept or change the content and make it more appropriate in terms of family, so that a person can sit together along with the family, or a person can sit along with his parents and see the programs. आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद there is question number 5th. Let me take you to the question number 5th. बच्चे question number 5th is on email. ईमेल का एक सेट फॉर्मेट है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, फिर से मैं आपको इसका फॉर्मूला दे रहा हूँ। द फॉर्मूला सेज FDTCS, F फ्रॉम D डेट, T टू CC एंड सब्जेक्ट। और ये जो डेट है, डेट के बिल्कुल सामने आएगा टाइम। इट हैज़ टू बी देयर इन द बॉक्स। आप जब बॉक्स बनाएंगे इसको पेंसिल यूज नहीं करेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल करना प्रोहिबिटेड है। आप पेन से ही बॉक्स को बनाएंगे, सारा पेपर आप इंग्लिश का पेन से ही करेंगे। यू विल बी यूजिंग डिटेल्स। अगर डिटेल आपको नहीं दी है क्वेश्चन में तो आप इसमें इमेजिनरी डिटेल यूज कर सकते हैं, मगर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं यूज करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल अलाउड टू यूज इन दिस पेपर। बच्चे यू विल बी स्टार्टिंग अप विद डियर फ्रेंड और डियर नेम इफ द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि ये पर्सनल ईमेल है, ठीक है। द क्वेश्चन सेज, एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द क्वेश्चन सेज राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द चेंज इन द डेट ऑफ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। आप अपने एक फ्रेंड को ईमेल लिख रहे हैं किस रिगार्डिंग, कि आपके भाई की जो शादी है, जो मैरिज सेरेमनी है, उसकी डेट चेंज हो गई है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे डियर से, डियर फ्रेंड या डियर रोहित, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। शी हैज स्टार्टेड द बॉडी इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। आई वॉन्ट टू रीड दिस बॉडी फॉर यू. In this body she has mentioned I am well and I hope that you are also doing well. This is the right way to start. क्योंकि जब भी हमारे घर पे कोई आता है तो हम पहला काम क्या करते हैं, हम हाल चाल पूछते हैं। तो यहाँ पे भी ईमेल को इसी तरह से स्टार्ट किया है। I am writing this email to inform you about the change in the date of marriage ceremony of my brother. Earlier would held on 10th March, जो पहले 10 मार्च को थी, but now it will be held on 15 March. जो अब शिफ्ट हो गई है 10 मार्च से 15 मार्च तक, ड्यू टू सम प्रिपरेशन इश्यूज। कोई भी इशू है, यू विद योर पेरेंट्स हैव टू कम ऑन दिस मैरिज सेरेमनी, इट विल बी रियली फन एंड शी इज रिक्वेस्टिंग यू टू अटेंड द मैरिज विद योर पेरेंट्स सो यू कैन एंजॉय ओवर देयर विद योर फ्रेंड, होपिंग फॉर योर गुड हेल्थ एंड लव, राइट। और इसको कैसे एंड करेंगे, विद रिगार्ड से। विद रिगार्ड में अगेन नेम, यू डोंट हैव टू गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। बच्चे अगर आपका ईमेल में फॉर्मेट का सीक्वेंस भी चेंज होता है तो आपका ईमेल जो है वो गलत मार्क हो जाता है। यू हैव टू स्टार्ट विद द स्पीच। अगर स्पीच की बात करें, देयर इज अ स्पीच इन द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज यू आर मनीष अर्पिता ऑफ GSS सांबा। आप मनीष हैं या अर्पिता हैं GSS के सांबा के। यू ज्वाइंट एन एजुकेशनल टूर। आपने एक एजुकेशन टूर को ज्वाइन किया टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। ये टूर कहाँ पे था, हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस क्या होते हैं, जैसे कि फोर्ट्स हो गए, पुराने ज़माने की चीज़ें होंगी, राइट। राइट ए स्पीच ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो आपको स्पीच लिखना है कि किस तरह से ये जो एजुकेशनल टूर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एक स्टूडेंट के लाइफ में। तो बच्चे स्पीच का जो फॉर्मेट है, द हेडिंग हैज़ टू बी रिटन इन दी सेंटर। तो ये हेडिंग है, इसको आपने सेंटर में लिखना है। यू हैव टू लीव ए लाइन, स्टार्ट विद दी ओपनिंग लाइन्स। ओपनिंग लाइन्स कहते हैं गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड, टुडे आई अर्पिता और मनीष एज इट गिवन इन द क्वेश्चन
is going to speak on the given topic, and the topic is importance of educational tour in students life. राइट तो आप इसको इम्पोर्टेंस इसकी बता सकते हैं कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, हमें नॉलेज मिलती है, हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, वी कम टू नो अबाउट आवर रूट्स, हमें अपनी रूट्स के बारे में पता चलता है, हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है, हमें थिंकिंग के बारे में पता चलता है कि जो पहले के लोग थे वो किस तरह से अपने स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते थे, हमें आर्कियोलॉजिकल का पता लगता है कि पहले क्या मटेरियल यूज़ होता था, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. राइट ओके बच्चे, इसके साथ ही यू गॉट अनदर क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन था यू आर मानव इन ऑप्शन. Seti from Punch, one day your mother asked you to go to vegetable market to buy vegetable. Write your experience in the form of narrative. आप मानव सेठी हो पुंछ के, आपकी मदर ने एक दिन कहा कि बाहर से कुछ सब्जियां ले आओ मार्केट जाके, तो आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा. ठीक है, तो ये पर्सनल नरेटिव है बच्चे. पर्सनल नरेटिव जब भी हम लिखते हैं हम इसे प्योरली पास्ट फॉर्म में लिखते हैं. पास्ट फॉर्म. वन डे, मैं आपको एक आइडिया दूंगा. वन डे व्हेन आई वाज स्लीपिंग माय मदर woke me up and she told me to get some vegetables from the market. As I am very lethargic in nature, somehow I woke up and I followed my mother's instruction and went to market to buy some vegetables. It was a sunny day. The sun was shining bright. I went to the vendor and asked him to pack 1 kg of potato. As I was too young, the vendor gave me potatoes of low quality, and I was not aware about the rates and prices that time, so I gave him the money which he asked. Without any confirmation, I paid him, got the potatoes and came back home. My mother scolded me for not asking the rate, and I still remember that point of mother is there in my mind. After that, I changed myself, and whenever I go to market, I try to confirm the rate first and then I buy things from the vendors. तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बच्चे. क्वेश्चन 7 एडिटिंग है. एडिटिंग बच्चे इसका फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. द फॉर्मेट सेज आपको ये पूरा पैसेज कॉपी पेस्ट करना है. जब आप इसे पेस्ट करेंगे, जो रॉन्ग वर्ड है, सी द रॉन्ग वर्ड इन द वेरी फर्स्ट लाइन इज ए को रिप्लेस किया है दी से और दी को अंडरलाइन करना है. इफ यू सी द रॉन्ग वर्ड इन द सेकेंड लाइन इज जोक्स, तो जोक्स को जोकिंग करना है और उसको अंडरलाइन करना है. बच्चे अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे यू विल लूज योर 8 मार्क्स. उसके बाद यू हैव टू मेक 2 कॉलम्स, एक इनकरेक्ट और करेक्ट. इनकरेक्ट की जगह आप वो वर्ड्स लिखेंगे जो कि एरर्ड है, जिनमें एरर है, जो कि सही नहीं थे, और उसके अगेंस्ट करेक्ट वर्ड्स लिखेंगे जिससे आपने इनकरेक्ट वर्ड को रिप्लेस किया है. बच्चे योर सेक्शन A, again I will be sharing the marking scheme with you. Your section A is of 20 marks. We talk about your section B, it is of 30 marks, and if we talk about the last section, that is section C, again it's of 30 marks. So we have discussed over section A and section B. Now moving to the last section, that is C. But as you know, the very first question would be a extract based question, and definitely it will be coming from one of the extract of a poem. We talk about a poem, is extract would be there. You have to go through the extract and you need to answer the question. The extract which was there in today's paper was on The Voice of the Rain. It is the last stanza which has been taken from the poem. If I talk about first question, the first question says, what does I refer to in this line? इस लाइन में जो ये लाइन है, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, इसमें आई का क्या मतलब है?
आई हियर रेफर्स टू द रेन, राइट, क्योंकि ये रेन बोल रही है ना। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, मैं वहाँ पे वापस जिंदगी देती हूँ जहाँ से मैं ओरिजिनेट हुई हूँ। द सेकेंड क्वेश्चन सेज हाउ डज सॉन्ग हैव इट्स फुलफिलमेंट, हाउ डज सॉन्ग हैव इट्स fulfillment. So the answer for the question is the song seeks its fulfillment by being heard by the listeners. अब जब एक म्यूजिशियन जब सॉन्ग कंपोज करता है तो उसे कौन सुनते हैं? उसे जब तक लिसनर्स नहीं सुनेंगे तो वो जो सॉन्ग है उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे द आंसर इज द सॉन्ग सीक्स इट्स फुलफिलमेंट। सॉन्ग तब पूरा होता है जब वो किसी के द्वारा सुना जाता है, when it is being heard by the listeners. The next question is identify the poetic device used by poet in the above extract. अब बच्चे यहाँ पे दो poetic devices आ रही हैं। If you talk about this answer sheet, बच्चे ने लिखा है एंटीथेरीज जो हैं we use this device जब हम opposites लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक लाइन है, द लाइन इज सेइंग डे एंड नाइट, तो डे एंड नाइट एंटीथेरिस है, राइट। और जो दूसरा है आई यानी रेन जो है वो ह्यूमन फॉर्म में बोल रही है, तो यहाँ पे आप पर्सोनिफिकेशन भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट। अगर आप दोनों में से कोई भी लिखते हो तो आपका कोई भी गलत नहीं करेगा, बोथ आर राइट, आपका कोई भी गलत नहीं करेगा, राइट। पर्सोनिफिकेशन क्योंकि आई है, रेन बोल रही है, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। इफ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट रिटर्न्स विद लव। द आंसर इज द सॉन्ग रिटर्न्स विद लव, राइट। तो बच्चे दिस इज द स्टैक बेस्ड क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पोइम्स को अच्छे से समझना है। यहाँ पे जो स्टेंजा है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम वॉइस ऑफ रेन, इस पे 4 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क एंड वी हैव डिस्कस द आंसर फॉर द फॉलोइंग questions. Moving to next part, the next part would be based on short answer type questions, ठीक है। और ये भी questions जो हैं ये आपके poem से ही आएंगे। तो poem का क्या marking scheme है? The poem comprises of total 10 marks. 10 marks कैसे? The 4 marks would be based on the extract based question and 6 marks would be based on the short answer type question. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है द 3 डिफरेंट स्टेंजा डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेज, व्हाट आर दे? ए फोटोग्राफ में जो 3 स्टेंजास हैं ये 3 डिफरेंट फेजेस बताते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन बताते हैं। तो किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? सी बच्चे, अगर आपने पोइम अच्छे से पढ़ी है तो पहला जो फेज है वो ये है कि जब मदर अपने कजन्स के साथ बीच पे गई थी व्हेन शी वाज इन हर यंग एज, ठीक है। और बीच में उनका जो फोटोग्राफ है उनके अंकल ने क्लिक किया था। उसके बाद द सेकंड स्टेज व्हेन शी बिकम एन अडल्ट, जब वो बड़ी हुई और वो अपनी फोटो को देखते हुए शी स्माइलिंग। और थर्ड फेज व्हेन शी लेफ्ट द वर्ल्ड, अल्टीमेटली शी डाइड। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोम लबनम टॉप। अब बच्चा लबनम टॉप इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोइम, इसमें गोल्ड फिंच की बात की है, ठीक है, लबनम ट्री की बात की है। नोटिस ये है कि जब लबनम टॉप पे गोल्ड फिंच नहीं आता तो वो इनएक्टिव होती है, वहाँ पे साइलेंस होता है। और सेम चीज़ फिर से होती है जब लबनम टॉप से गोल्ड फिंच चली जाती है अपने बच्चों को फीड करने के बाद, अगेन इनएक्टिव हो जाती है ट्री और साइलेंस सराउंड्स द ट्री, कंप्लीट साइलेंस, राइट, ओके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द पोएट टॉक्स ऑफ एन एक्सक्लूसिव पर्सनल एक्सपीरियंस और इट इज फेयरली यूनिवर्सल। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम फादर टू सन। अगर हम फादर टू सन की बात करें, यहाँ पे एक फादर और सन का रिलेशन बताया है, मगर इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस भी है, राइट। पोएट के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस है मगर इन जनरल जो है ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसे ही सन बड़े होते हैं, ठीक है, बॉयज़ बड़े होते हैं, तो देयर इज़ अ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप की वजह से क्या होता है बच्चे, जो थिंकिंग है सन की वो डिफरेंट होती है इन जनरल सेंस ऑल्सो एंड इन पर्सनल सेंस ऑल्सो एट
as it has been depicted in the poem. और जो थिंकिंग डिफरेंट होने की वजह से फादर और सन में क्लैशेज आने शुरू होते हैं एंड दे स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर. तो आपको इस क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन करना है. इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड you have to do any three, but we will be discussing in each and every question which is there in this question paper. तो बच्चे पहला क्वेश्चन जो है वो सिल्क रोड से है. सिल्क रोड में द क्वेश्चन सेज हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर एट द टाउन होर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर विजिट्स टू द प्लेस. अब जब वो होर में जाते तो होर किस तरह का शहर है बच्चे, अगर आप सिल्क रोड ध्यान से पढ़ोगे तो होर इज ए ग्रिम. ग्रिम का मतलब होता है अगली. होर एक अगली शहर है जहां पे बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है. ये टाउन मानसरोवर लेक के साइड पे है और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मानसरोवर लेक के साइड के होने के बावजूद भी इस टाउन में कोई वेजिटेशन नहीं है और ये रॉकी है, डस्टी है. राइट. द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम थ्योरी में बच्चे दिस क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द एडवेंचर गाय टुंडे वाला चैप्टर. क्वांटम थ्योरी में इट हैज बीन गिवन, हम इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चैप्टर, कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फोर्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे हमेशा क्लास में बात की है कि जब बुलेट फायर होता है तो बुलेट कहाँ पे भी जाएगा हमें नहीं पता. राइट. बट हमें उसका डायरेक्शन का पता होता है. उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन को फोर्स दी जाती है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड में कहाँ पे जाएगा वी कांट प्रेडिक्ट इट, और इससे ही ट्रांसमिशन हुआ है फ्रॉम वन वर्ल्ड टू दी पैरेलल वर्ल्ड. दिस इज डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. राइट. सो द गर्ल हैज रिटन ब्यूटिफुली. इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार पढ़ के बताना चाहूंगा. द गर्ल हैज रिटन, if a bullet is fired from a gun, one will know where it will be later with the specific direction. Okay, but it is not same in the case of electron. When an electron is entered, it will go anywhere. As an electron varies from the low to high state. When I move from one place to another from low to high state, whereas जो शेल्स होते हैं बच्चे, अगर आपने केमिस्ट्री दिस इज अ आर्ट क्लास, तो दिस इज अ साइंस कंसेप्ट के इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो वो लोअर से हायर स्टेट की तरफ जाता है. आपको इतनी डेप्थ में नहीं जाना है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द चैप्टर कि इलेक्ट्रॉन जब उसको फोर्स लगता है वो कहाँ पे जाता है, उसका किसी को भी प्रिडिक्शन नहीं होता, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता. इसकी वजह से जो है वो ट्रांसमिशन हो जाती है, और इसी वजह से चैप्टर में कहा गया है कि जो गाय टुंडे था वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में मूव कर गया. ओके, सो क्लास, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट आवर इज एवरीडे लाइफ. डिस्कस. तो ओवर पॉपुलेशन हमारी किस तरह से लाइफ को अफेक्ट कर रहा है. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एलिंग प्लैनेट. राइट. द प्रॉब्लम किस ओवर पॉपुलेशन, अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन से, अगर जनरली हम देखें तो क्या क्या होता है. ओवर पॉपुलेशन से बच्चे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं. राइट. उसके बाद हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से मेडिकल फैसिलिटी सेंटर्स जो हैं वो नंबर में डिक्रीज़ हो जाते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन डायरेक्टली इफेक्ट्स आर एवरीडे लाइफ बाय कंट्रीब्यूटिंग इन द रिडक्शन ऑफ हेल्थ सर्विसेज सेंटर्स. द अर्थ बिकम पेशेंट, क्योंकि अर्थ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अर्थ का जो लैंड है वो कम हो रहा है, अर्थ की जो रिसोर्सेज हैं वो उतनी ही हैं. तो अर्थ जो है वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज देती है, जिसकी वजह से हमारी नेचुरल रिसोर्स भी जो है एग्जॉस्ट हो रही है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो किस तरह से अर्थ एक्सप्लॉइट हो रही है हमें यहाँ पे आंसर करना है. इफ आई मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन इज बट वी रियली नीड टू वर्क ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, सो हमारे जो अर्थ की रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं हो पाए. ठीक है बच्चे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ डिड द नरेटर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ एंड व्हाई वाज ही स्टिल पीसफुल. ये तब की बात है जब
ब्लैक ह्यूज वेव जो है वेव वॉकर को के साथ टकराती है, और जो ऑर्थर है, जो नरेटर है, नरेटर का हेड जो है वो व्हील पे पड़ता है और वो देखता है कि वो पानी के अंदर पहुंच जाता है। पानी के अंदर पहुंचता है तो ही हैज़ नो ऑप्शन टू डू एनीथिंग, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपनी अप्रोचिंग डेथ को वहाँ पे एक्सेप्ट करता है और पीसफुली ही एक्सेप्ट्स के ओके आई एम डाइंग नाउ। मगर फॉर्चुनेटली वो दोबारा से रिकवर होते हुए शिप में जाता है, शिप का व्हील संभालता है, देखता है उसके हेड में लगी होती है, उसके रिब्स टूटे होते हैं, और पीछे से इतनी देर में उसकी वाइफ आती है और वाइफ कहती है कि शिप में पानी जो है वो घुस गया है। एंड ही रशेज, वो देखता है अपनी बेटी से पूछता है कि आर यू ओके, बेटी कहती है कि आई एम ओके। बेटी डॉक्टर जो सू है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है ना, मेरी जो उसकी वाइफ है नरेटर की, और वहाँ पे जो लैरी और हर्ब हैं वो पानी को पंप आउट कर रहे होते हैं। तो बच्चे ये इंसिडेंट जो है यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर ग्रीफ सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। अब क्या होता है कि चैप्टर में ये दिया है कि जब खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर हाफ एन आवर जो है अपना दिन का स्पेंड करती है ब्रेड क्रम्स खिला के, मगर जब वो अनफॉर्चुनेटली मर जाती है, किसको ब्रेड क्रम्स खिलाती है? स्पैरोस को। मगर जब वो मर जाती है, व्हेन शी डाइज व्हाट हैपन्स, जब वो मर जाती है तो वहाँ पे स्पैरो आती हैं, मगर स्पैरोस में एक चीज़ देखी जाती है कि वो बिल्कुल भी क्रीप नहीं करती, बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। खुशवंत सिंह की मदर उसको खाना डालती है स्पैरोस को, वो खाना नहीं खाती, और जैसे ही मदर की डेड बॉडी को ले जाया जाता है फॉर द क्रिमिनेशन प्रोसेस, तो वो साइलेंटली उड़ जाती है और दोबारा नहीं आती। सो उनका साइलेंट होना, उनका शोर ना मचाना, बॉडी के आसपास बैठ जाना, इट इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर सॉरो टुवर्ड्स द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगेन इट इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? Discuss. This is a very important question, और ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर द बर्थ से। अब एंड्रयू मेंशन जो है, अगर हम चैप्टर बर्थ की बात करें तो एंड्रयू मेंशन डॉक्टर हैं जो की वाइफ, अगेन सुजैन इज देयर, सुजैन इज जोस वाइफ, उसकी हेल्प करते हैं। और इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से एंड्रयू मेंशन क्रिस्टीन से लड़ने के बाद व्हेन ही वाज कमिंग बैक टू हिज होम, वो देखता है कि जो उसके घर के आगे पीछे चक्कर मार रहा होता है पिछले 1 घंटे से। तो वो जो से पूछता है कि क्या बात है, जो से कहता है कि डॉक्टर एंड्रयू, एज आई हैव टोल्ड यू कि माय वाइफ इज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी आफ्टर 20 years एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द बेबी। हम बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम चाहते हैं कि आप ही हमारे बेबी को डिलीवर करें, और आज वो दिन है जब हमारा बेबी डिलीवर होने वाला है। तो एंड्रयू उनके घर जाता है, जो घर में एंट्री नहीं करता। तो यहाँ पे एंड्रयू कहता है कि आप घर में एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ही सेड कि आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम वरीड अबाउट माई चाइल्ड बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग दिस बेबी आफ्टर 20 years। हम 20 साल के बाद इस चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो एंड्रयू जो है अंदर जाता है, वहाँ पे मदर इन लॉ होती है, मदर इन लॉ उसको ऊपर लेके जाती है। ऊपर लेके जब वो जाता है तो अंदर वहाँ पे पेशेंट होती है सुजैन, और वहाँ पे एक मिडवाइफ होती है। उसके बाद वो चेक करता है और कहता है कि अभी टाइम है, और कहता है, और जो मदर इन लॉ है वो कहती है कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे? तो वो कहती है डोंट फ्रेट मदर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं जब तक यहाँ पे सुजैन की डिलीवरी नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो नीचे जाते हैं, डिलीवरी का टाइम आता है, बेबी पैदा होता है, बेबी स्टिल बॉर्न होता है, मगर देखते देखते साइमल्टेनियसली जो मदर है उसकी भी हेल्थ डिग्रेड हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है। ये मिडवाइफ को बेबी पकड़ाता है और मदर को एम्प्यूल लगाता है, इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, राइट, एम्प्यूल फिल करके। तो वहाँ पे मदर की जब हेल्थ स्टेबल होती है तो ये मिडवाइफ को कहता है कि बच्चा मुझे दो। अब मिडवाइफ ने क्या किया होता है, बच्चे को बेड के अंदर रखा होता है न्यूज़पेपर में लपेट के। एंड्रयू कहता है ओ गॉड, वहाँ पे वो बच्चे को बाहर निकालता है, न्यूज़पेपर से हटाता है, उसको रब करता है टॉवल में डाल के चेस्ट को, और उसे याद आता है कि एक केस सेम उसके कॉलेज में आया था जिसमें उन्होंने एक गर्म पानी और एक ठंडा पानी का बाउल मंगा के बच्चे को डिप किया था।
तो सेम चीज़ वो मिडवाइफ को कहता है, मिडवाइफ सारा सामान लेके आती है और इस तरह से उसको डिप करता है, मगर बच्चे को कोई असर नहीं होता है, 15 मिनट तक ऐसा करता, थक जाता है, बट वो हार नहीं मानता, ही डजंट लूज अ होप। वो बच्चे को डिप करने के बाद फिर से रब करना शुरू करता है उसकी चेस्ट पे, और बच्चा जो है एकदम से गैस्प करता है। मतलब गैस्प का मतलब होता है मुंह खोल के सांस लेता है। जब बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है तो बच्चा बच जाता है। तो इस तरह से मेहनत करके वो जब बच्चे को रिवाइव करता है तो वो ये कहता है कि आई हैव डन समथिंग गुड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। तो एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट की लाइफ को सेव करना, एक पेशेंट को हेल्दी करना, पेशेंट को रिवाइव करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर। तो इसलिए वो अपनी अचीवमेंट में खुश हो रहा होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसके और की बात करें तो और में देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्नैपशॉट अगेन, द एड्रेस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द लेसन द एड्रेस इज अबाउट एन ऑटोबायोग्राफिकल नोट एट वन लेवल while at another it portrays how futile the war is। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है futile। futile का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, राइट। What are your views regarding war and is it truthful? Base your views on chapter the address। अब बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से, और इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। क्या वॉर जो है वो फ्रूटफुल है? वॉर बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वॉर से सफरिंग्स होती है, लोग सफ़र करते हैं, ह्यूमंस अपनी लाइफ जो है उसे लूज़ करते हैं, जो नॉर्मल लाइफ चल रही होती है वो भी ख़राब हो जाती है। जो वॉर होने के बाद जब चीज़ें ठीक होती हैं, नॉर्मल होती हैं, मतलब कि एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू लाइफ, जब सभी चीज़ें वापस आ रही होती हैं, मगर जो वॉर का वूंड जो है, जो दर्द है वो कभी नहीं हील होता, वो हमेशा रहता है। वर्ल्ड चेंज हो जाता है, वॉर के दौरान लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, लोग अपने घर से डिस्प्लेस हो जाते हैं, लोग अपने लव वंस को खोते हैं, अपने फ्रेंड्स को खोते हैं, अपनी फैमिली को खोते हैं, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइफ ख़राब हो जाती है। ये कंट्री की इकनॉमी को ड्रैग करता है, कंट्री की इकनॉमी को ख़त्म कर देता है। हमें हमेशा नॉन वायलेंस को प्रमोट करना चाहिए, हमें हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, हमें वॉर के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, और हमें सबके साथ हार्मनी के साथ रहना चाहिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, एंड आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरह से किस तरह से वॉर जो है डिस्ट्रक्टिव है, मगर वी शुडंट इंडल्ज इन वॉर, उसके इफ़ेक्ट्स को शो करके, राइट। अगेन देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन सेज, sorry, the 11th one, second long answer type question, it will be coming for 5 marks, the first long answer will be coming for 6 marks। तो ये जो 5 mark question है ये कहता है the lesson discuss the play Mother's Day as a social play and what the various social issues the play raises। तो सोशल इश्यूज़ क्या हैं बच्चे के मदर्स डे में? ये बताया गया है कि जो फीमेल्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो फैमिलीज़ में बहुत ख़राब है, वो सोसाइटी में बहुत ख़राब है। पहले कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, कुछ जम्मू इंडिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फीमेल्स को राइट ऑफ एजुकेशन नहीं है, फीमेल्स चाइल्ड मैरिज में इंडल्ज हैं, फीमेल्स जो हैं वो इक्वल नहीं मानी जाती है एज मैन। फीमेल्स मोर ओवर उनको ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स के लिए ही बनी है। और हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर मदर्स डे में भी इसी बारे में बात की है कि किस तरह से मिसेस एनी पियर्सन को उसकी फैमिली जो है रिस्पेक्ट नहीं देते, वो किस तरह से सुबह से शाम तक काम करते, बिना ऑफ के, बिना छुट्टियों के वो सैटरडे संडेज़ को काम करती है। शी फॉलोज ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन विच इज़ बीन गिवन बाय हर children, he follows each and every order which is given by जॉर्ज पियर्सन जो उसके हस्बैंड हैं। और फिर भी इतना करने के बाद भी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी एनी पियर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है। इट इज़ हाईलाइटेड बाय दिस स्टूडेंट वेरी नाइसली। और में देर इज़ अनदर क्वेश्चन कि वी हैव टू टॉक ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस फिट्जजेराल्ड। अगर फिट्जजेराल्ड की बात करें तो बच्चे, फिट्जजेराल्ड कौन थी? वो एनी पियर्सन की नेबर थी। फिट्जजेराल्ड एक्सपीरियंस थी, एक स्मार्ट वुमन थी। फिट्जजेराल्ड वॉज नोइंग मैजिक, जो फिट्जजेराल्ड ने कहाँ से सीखा था? ईस्ट से सीखा था।
उनकी वॉइस डीप थी, शी वॉज स्ट्रॉन्ग, शी वॉज डोमिनेटिंग, शी वॉज बोल्ड इन हर नेचर. शी स्ट्रांगली बिलीव्स दैट वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. राइट. फिट्जराल्ड को लगता था कि वुमेन्स का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए सोसाइटी में. शी हेल्प्ड मिसेस पियर्सन टू सेट हर स्पॉइल्ड हस्बैंड. उन्होंने अपनी पर्सनालिटी स्वैप की. और प्लीज़ एक वर्ड का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो पर्सनालिटी स्वैपिंग लिखिएगा, सोल स्वैपिंग नहीं होता. पर्सनालिटी स्वैप की थी उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द मैजिक विच हैज़ बीन लर्न्ड बाय मिसेस फिट्जराल्ड फ्रॉम ईस्ट, क्योंकि इन्हें जादू आता था. ठीक है. इन्होंने अपनी पर्सनालिटी स्वैप की. पर्सनालिटी स्वैप करने के बाद शी हेल्प्ड पियर्सन उसकी फैमिली को सेट करने के लिए, है ना. जब वो कहती है कि जॉर्ज पियर्सन को कहती है कि आपको तो सभी क्लब में ओम्पी पोम्पी कहते हैं, और डॉरिस को भी वो सेट करती है, डॉरिस के साथ साथ साइरल को सेट करती है. तो एवरीथिंग इज़ देयर इन द चैप्टर. आपको अच्छे से इसका समरी पढ़ना है. तो यू हैव टू राइट कि किस तरह से फीमेल्स का जो अपलिफ्टमेंट है वो होना चाहिए, और किस तरह से अपलिफ्टमेंट बताया गया है कि अपनी फैमिली में ही किस तरह से एनी पियर्सन को पहले बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, मगर बाद में शी वॉज रिस्पेक्टेड बाय ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली व्हेन द फैमिली वॉज सेटेड इन अ राइट वे बाय फिट्जराल्ड, जब फिट्जराल्ड अपनी पर्सनालिटी स्वैप करती है. तो बच्चे, एट द एंड आई वांट टू गिव यू सम कॉमन इंस्ट्रक्शंस. पेपर सभी 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे. 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यू हैव टू राइट मिनिमम ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चन के लिए यू हैव टू राइट फॉर 150 to 200 वर्ड. 8 मार्क्स क्वेश्चन के लिए यू हैव टू राइट फॉर 200 to 250 वर्ड. 3 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए यू हैव टू राइट मिनिमम ऑफ 50 to 75 वर्ड. जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन बी के, वो 200 to 250 वर्ड्स के आपको लिखनी है. बाकी जो नोटिस है वो 50 वर्ड्स का होना चाहिए. पोस्टर आपका सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए. यू हैव टू कीप एवरी की पॉइंट इन योर माइंड while attempting your paper. बच्चे, और कोई डाउट होगा यू कैन openly ask your doubt in the group, and definitely I'm there, Nidhi ma'am would be there to help you with your doubts. Thank you, and I would like to wish you all the best for rest of your day, and do study hard. Thank you and have a nice day.